Okay, so good morning once again. Welcome to accountancy class today. This is the fourth day of the same chapter which is going on, that is accounting terminology. In accounting terminology, so far we have studied various terms which we are going to use. Yesterday I left the topic with this sales and purchases. These are very simple common words. You may have heard it a number of times. But here, when it is concerned with business and accountancy, there is a particular difference between normal purchases, like purchases, and total purchases. So let's discuss that. See, as a businessman, we have to purchase a number of things. For example, I am running a business to make furniture. So I have a business to make furniture. So to make that furniture, what I will do, I will buy some timber. That timber will be raw material to make furniture. So I need to buy. What I need to do, I need to buy some timber as raw material to make or to convert it into furniture. Other than this, I need some more items also. What else I need to do? What else is required to make furniture? For example, we need some land also. We need some building also. We need some machinery also. Yes, bete? So we need all these things. We need this also, this and this. All these items are required to do the production process of furniture. ठीक है जी? But now देखो लैंड भी परचेज करनी पड़ेगी, बिल्डिंग भी परचेज करेंगे, मशीनरी भी परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल टिम्बर भी परचेज करेंगे. But we will call this is called as purchases, and these all will be called as assets. ठीक है? Is it clear? जब हम इनको परचेज करेंगे तो हम इनको एज एन एसेट ट्रीट करेंगे एंड दे विल बी रिटन ऑन देयर ओन नेम. मतलब अभी ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाली हूँ, दिस इज अ टेक्निकल लाइक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. व्हेन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स, जब आप मशीनरी परचेज करोगे, व्हाट यू विल राइट? मशीनरी. व्हेन यू विल परचेज बिल्डिंग, व्हाट यू विल राइट? बिल्डिंग. व्हेन यू विल परचेज लैंड, व्हाट यू विल राइट? Land. But if you purchase raw material, you will write purchases. Clear हुआ बेटे मैंने क्या बोला? न्यूमेरिकल्स के लिए बोल रही हूँ. आप कोई भी एसेट परचेज करोगे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, चाहे व्हीकल खरीदी, मोटर व्हीकल, कार खरीदी है, या कोई मोटरसाइकिल खरीदा है, या कोई लैपटॉप कंप्यूटर खरीदा है कंपनी के लिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इक्विपमेंट्स खरीदे हैं आपने, एसेट्स है. जितने भी एसेट्स होंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स, हम सारे एसेट्स को उनके नाम से लिखेंगे. बट वी विल राइट देम ऑन देयर नेम. लाइक आई विल राइट लैंड अकाउंट. लैंड खरीदी तो किस में लिखूंगी? लैंड. मेरे पास कैश आया, आई विल राइट कैश अकाउंट. फर्नीचर आया फॉर एग्जांपल अपने ऑफिस के लिए, तो आई विल राइट फर्नीचर अकाउंट. So every time whatever thing I will buy, कुछ भी मैं buy करूंगी, I will write on their own name. Land तो land account, cash तो cash account, furniture तो furniture account. Only there is one exception. When I purchase raw material, I will never write raw material account. Raw material का कोई account business में, commerce में exist ही नहीं करता. तो raw material will be written on the name of purchase account. इस नाम से लिखेंगे बेटे उसको, purchases account. Is it clear to you? Clear है बेटे? Please write it down. Write it down. Purchases means the purchase of goods or raw material for resale
और फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स। तो ये हमने क्यों खरीदा? या तो हम इसको रीसेल करने के लिए खरीदते हैं या फिर हम इससे कुछ आगे बनाने के लिए खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कपड़े का बिजनेस है, यू आर रेडीमेड गारमेंट्स का आपका बिजनेस है, तो यू आर परचेजिंग क्लोथ्स, यू आर परचेजिंग रेडीमेड गारमेंट्स, दैट परचेज विल बी कॉल्ड एज व्हाट? क्या लिखोगे यहाँ? क्लोथ्स अकाउंट, गारमेंट्स अकाउंट, क्या लिखेंगे आप बताइए? एनी वन ऑफ यू कैन टेल? Raise your hand, I will allow you. Those who know. Okay, Harman wants to answer. Harman, bete, you can answer. Ma'am, purchases account. What is written as purchases account? Clothes. Garment. Yes, garment if purchased for the purpose of resale, that will be written as purchases account. Otherwise, गारमेंट सेल करने के लिए हमने कोई व्हीकल खरीदा, कोई और बिल्डिंग खरीदी, तो दैट विल बी रिटन ऑन देयर ओन नेम. ओके, दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट वर्ड एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस. अच्छा, एग्जांपल आपको लिखवाई दिए. परचेजेस के बाद आ जाता है हमारे पास परचेजेस रिटर्न. परचेज रिटर्न, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड. साथ ही लिख लीजिए परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड. ठीक है बेटे, परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड. नाउ एज द नेम सजेस्ट, नाम से पता चल रहा है आपको रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा. व्हेन वी हैव परचेज्ड समथिंग, व्हाट वी हैव परचेज्ड, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि परचेज मींस वी हैव परचेज्ड रॉ मटेरियल or some stock. So what is purchase return? Whatever raw material we have purchased or whatever material we have purchased, if we are not satisfied with the same, the reason may be कि जो goods हमें मिले वो हमें up to the mark नहीं लगे. The reason may be हमने 10,000 units बुलाए थे, उन्होंने 15,000 भेज दिए, extra भेज दिए, तो we have to return it. The reason may be वो damaged goods थे या फिर outdated थे, fired थे. So there may be XYZ so many reasons. But for whatever reason, when the raw material is being sent back to the supplier, it will be called as purchase return or return outward. Outward क्यों कहते हैं? हमने वापस भेजा तो हमसे तो आउट ही गया. So that is the way you can like इसका एक hint हम रख लेते हैं. Outward means purchase is going out. So purchases return or return outward. एक लाइन में लिख लीजिए. Goods may be returned to the supplier. Goods may be returned to the supplier for any reason. Any reason लिख लो, कुछ भी reason हो सकता है. Is called as purchase return. ठीक है जी. Done. अब इसके बाद सिमिलरली हम आ जाते हैं सेल्स में. एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन हमारी हो जाएगी. नाउ सेल, हमारे पास लैंड है, हमने लैंड भी सेल करा होगा. हमारे पास कैश तो नहीं हम सेल करते हैं, तो ऐसे लिखा था. हमारे पास कोई और एसेट है, फॉर एग्जांपल वी हैव फर्नीचर, नॉट फर्नीचर नहीं लिखेंगे, एग्जांपल चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल वी हैव मशीनरी और वी हैव सम मोटर व्हीकल. So we have motor vehicle, we have machinery, we have land. In case for any reason हमारे पास extra land है, we want to sell it. हमने इसको सेल कर दिया, तो अगर लैंड को हम सेल करेंगे तो हम उसको किस अकाउंट में लिखेंगे, किसके नाम से लिखेंगे बताइए? When we purchase land, हमने किसके नाम से लिखा उसको? नंदिका, you can answer. Yes. Land account. When we purchase land, we have written on land name. And when we sell land, where we will write it? If we sell land, whatever land we have purchased, we have written here in land account में ही purchase लिखेंगे और land account में ही हम sale लिखेंगे. ठीक है जी.
So whenever we purchase, we will write here in land account. We will sell, we will write here in land account. Sale means गया माइनस हो गया, purchase means आया प्लस हो गया, ठीक है जी, तो इसी में लिख दिया। लेकिन अगर हम रॉ मटेरियल से कुछ फिनिश गुड्स बना के सेल करेंगे, देन जब रॉ मटेरियल हमने खरीदा तो हमने लिखा परचेज है, अब उस रॉ मटेरियल से बने हुए गुड्स व्हेन वी विल सेल, वेयर वी विल राइट? Yes, Nandini, you can answer. सेल अकाउंट। तो रॉ मटेरियल से मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेल्स मींस सेल ऑफ फिनिश गुड्स। लिख लीजिए आप भी, सेम ही है इसके पास, इतना सा लिखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स? सो सेल इज पर्टिकुलरली कंफाइंड विद सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। Whatever goods you have purchased for the purpose of resale, जैसे अभी गारमेंट्स की एग्जांपल दी, अगर आपने सीधे गारमेंट ही खरीदे बने बनाए, कुछ किया नहीं उसको, तो whatever you have purchased, परचेज अकाउंट, जब आप उन कपड़ों को बेचोगे तो सेल्स अकाउंट, दैट्स ऑल। अगर आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो रॉ मटेरियल परचेज एंड देन फिनिश गुड्स सेल्स। अदर देन दिस मशीनरी, मोटर व्हीकल सेल किया, मशीनरी सेल करी, लैंड सेल किया, तो किस अकाउंट में? लैंड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट। डन? एक लाइन में लिख लीजिए, सेल्स मीन सेल ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी, सेल ऑफ मटेरियल परचेज्ड फॉर रीसेल और सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एक ही लाइन में आपका मीनिंग क्लियर हो जाए। अब जैसे सेल्स है वैसे सेल रिटर्न भी हो सकती है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को और क्या बोल सकते हैं हम? जैसे हमने इसको रिटर्न आउटवर्ड बोला था, तो व्हाट वी कैन कॉल इट? ओके नंदिका, यस बेटे। Sales inward. रिटर्न्स इनवर्ड, जैसे ये रिटर्न आउटवर्ड थी, Yes, return inward. return inward. So you can write here the other name of sales return is, what is the other name of sales return? Returns inward. Return inward how? Like I have sold goods to someone. मैंने किसी को goods बेचे. For example, Harman is my customer. I have sold 10,000 के goods to Harman. Now Harman doesn't like 2,000 के goods. So Harman wants to sell it back, send it back to me. So when a businessman is sending something back to the supplier, it will be called as purchase return. When a businessman is getting things from the customer, then they are coming in. It's the reason we have written return inward, sales return. तो लिख लीजिए एक लाइन में, goods sold when returned by the customer. Goods sold when returned by the customer for any reason हो सकता है। हम, आपको पता ही होगा, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से ले लेके चीजें वापस करते हो ना, तो वो रीजन पूछते हैं। अगर आप दे देते हो रीजन तो वेल एंड गुड, नहीं देते हो तो वहां एक ऑप्शन होती है एनी अदर रीजन, तो वहां क्लिक करके आप वापस कर दो। तो कभी आपको साइज ठीक नहीं लगा, आपको कलर क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, कुछ भी, तो आप वापस कर सकते हो। सो द सेम इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मींस गुड्स sold when returned by the customer for any reason is called as sales return. Done? इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ गया है, that is stock. Now what is the meaning of stock? Stock बेटे आपने कभी सुना है ये वर्ड पहले? स्टॉक क्या होता है? हरमन, yes बेटे, you can unmute yourself. मैम कोई भी चीज जब बल्क में पड़ी होती है तो सेल के लिए। मतलब बल्क में पड़ी हो या जैसे भी पड़ी हो, जैसे हमारा बिजनेस है तो हम कुछ बनाते हैं बेचते, बनाते हैं बेचते, तो कुछ ना कुछ रह भी जाता होगा, जरूरी तो नहीं कि सब कुछ ही सेल हो जाता है, कुछ बच भी जाता होगा। फॉर एग्जांपल, एक आपके घर के पास है कोई स्वीट सेलर जो मिठाइयां बना के बेचता है, तो बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट डू यू थिंक कि एवरीथिंग ही हैज इन द शॉप इज बीइंग सोल्ड। कुछ समोसे बनाए होंगे उसने, कुछ मिठाइयां बनाई होंगी, कुछ पनीर बनाया होगा, और व्हाटएवर ही हैज मेड। So do you think that everything is being sold out at the end of the year? No, at the end of the day. So he may have something left which he will be keeping in the freezer and next day is going to sell the same. So be careful. आजकल कोविड चल रहा है तो इसीलिए बोलते हैं बाहर से मत खाया करो, बिकॉज वो लोग आपको पुरानी चीजें भी देते हैं, आप खुशी से खाते हैं। घर पे अगर मम्मी आपको कोई दे पुराना खाना दे दे,
फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक मीन्स समथिंग विच इज केप्ट विद अस, लाइक व्हाटएवर इज लेफ्ट विद अस, we have to keep it definitely. Whatever is left which is not sold, unsold हमारे पास कुछ पड़ा है, finished goods या unfinished goods, raw material भी कुछ बचा हो सकता है। By the end of the day आप बताइए, 3 तरह का स्टॉक होता है बेटे, पहले ये क्लियर कर लेते। जैसे अभी मिठाई वाले की बात एग्जांपल लेके चल रहे, मिठाई वाले ने दूध लिया से 2 क्विंटल, उससे वो बनाता है रसगुल्ले एंड बर्फी एंड दही एंड लाइक कर्ड, क्या बोलते हैं उसको, cheese he is making, then curd he is making, cream he is making, sweets he is making a number of things. Now at the end of the day he may have with him say 50 kg या 50 liters of milk, जिसको अभी उसने कुछ नहीं किया, 5 kgs of curd, 2 kgs of cheese and say 7 to 8 kgs of sweets he has with him. So that's how we can say some part of the milk is there. Milk is the raw material. ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, milk is raw material for a sweet seller. So that raw material he has, जिसका उसने कुछ नहीं किया। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जैसे milk is there, he has put it for the purpose of converting it into curd. उसको सोर करके रख दिया, अभी दही बना नहीं, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। मैं लिखी देती हूँ, 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे हमारे। एक होता है हमारे पास रॉ मटेरियल, जो यहाँ पे एग्जांपल में मिल्क है, जिसको अभी इसने कुछ नहीं किया, 50 लीटर मिल्क उसके पास पड़ा है, रॉ मटेरियल, अनटच्ड, अनयूज्ड। नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो उसने कुछ हद तक बना दी है बट इट इज नॉट येट कंप्लीटेड, जिसकी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मिल्क इज देयर, he has put some sour like curd in the milk, but it will take some time like 4-5 hours to convert it into curd. ये तो दुकानदार की एग्जांपल दी। फैक्ट्री की बात करें अगर हम, जैसे फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री की एग्जांपल चल रही, तो रॉ मटेरियल इज द टिम्बर। अगर डायरेक्टली लकड़ी उसके पास पड़ी है वो उसका रॉ मटेरियल। कुछ लकड़ी ऐसी है जिसको कट करके चेयर्स की शेप दे दी गई है, चेयर्स की शेप है बट उसकी पॉलिशिंग, उसकी फिनिशिंग, उसकी पेंटिंग अभी नहीं हुई है। दिस टाइप ऑफ चेयर्स विल बी कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस। एंड द थर्ड कैटेगरी में बी फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मींस द चेयर्स व्हिच आर बीइंग कंप्लीटेड, जो चेयर्स बन चुकी है हमारी, टोटली कंप्लीटेड है, दैट इज कॉल्ड एज फिनिश्ड गुड्स। तो बाय द एंड ऑफ द डे, अगर मैं उसकी स्वीट सेलर की बात कर रही थी, हियर इन द बिजनेस we are concerned with 1 full year. So when I am talking about these 3 type of stock, तो ये स्टॉक हम किस डेट को मेजर करेंगे? We will measure it on 31st मार्च। हमारा ईयर कब क्लोज होता है? 31st मार्च को। तो 31st मार्च को when I will measure, मेरे पास कितनी रॉ मटेरियल पड़ा है, मेरे पास कितना वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा है और मेरे पास कितने फिनिश गुड्स पड़े हैं इन माय गोडाउन। This will be called as stock because it is calculated at the end of the year. तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं हम इसको। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जब एंड ऑफ द ईयर हुआ, हमने सारा कुछ क्लोज कर दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, और क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को हमारा जो था, इट इन्वॉल्व्स 1, 2, 3 थिंग्स। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल है हमारे पास 100 रुपीज, ये है हमारे पास 150 रुपीज। अब रुपीज ले लो या 1000, अभी इतना ही शॉर्टकट में ले रही हूँ, और ये मेरे पास 200 का, तो टोटल हो गया मेरे पास 2, 3, 4, 450। इतना हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कब मेजर करते हैं आप बताइए मुझे? आई हैव रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। यस, नंदिका, नंदिनी एंड हरमन, ओनली 3 ही बच्चे हैं जो हैंड रेज कर। ओनली दीज 3 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू स्पीक। यस नंदिका बेटा, यू कैन स्पीक। At the end of the accounting year. उसको क्या बोलते हैं? 31st March. What do we call that stock? Closing stock. And what all is included in closing stock?
Raw material, work in progress, finished goods. Very good. 31st March, we are closing the accounts and we have come to the conclusion that 450 rupees का stock मेरे पास पड़ा है. Now the very next day, 31st March के बाद next day क्या आता है? When the new year begins, क्या होता है वो day? 1st April, 1st April and the Very good. 1st April आ जाता है हमारा next day, नया साल start होता है. तो जब नया year start हुआ तो हम देखेंगे कि हमारे पास already कितना stock पड़ा है. देखेंगे ना? तो जो स्टॉक लास्ट ईयर में कैलकुलेट किया था कि ये बचा है 450, वो 31 मार्च से 1 अप्रैल को वही स्टॉक आएगा, चेंज तो नहीं हो जाएगा. तो दिस सेम स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक. क्या बोलते हैं इसको? ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल इसी ईयर की एग्जाम्पल लें तो 31 मार्च को जो स्टॉक था वही 1 अप्रैल को स्टॉक रहा होगा. तो 31 मार्च को जो स्टॉक था पिछले साल का वो क्लोजिंग स्टॉक था. 1 अप्रैल को जो स्टॉक है वो न्यू ईयर का ओपनिंग स्टॉक है. अब इस न्यू ईयर का जब एंड होगा देन देयर मे बी सम अदर क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. नंदिका, यू वांट टू से समथिंग? यू हैव रेज्ड योर हैंड. No, ma'am. ओके, सो इज इट क्लियर बेटे? ओपनिंग स्टॉक लिख लीजिए प्लीज. ये पांचों चीजें आपने लिखी. स्टॉक लिखा. अच्छा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेंट्री भी बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? अगर कहीं ये टर्म आ जाए तो ये नहीं बोलना, हमें पता नहीं था. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेंट्री. ठीक है जी. इन्वेंट्री और स्टॉक. ठीक है जी. इन्वेंट्री और स्टॉक लिखिए एक लाइन में. स्टॉक और इन्वेंट्री की डेफिनेशन में लिख लीजिए. इट इज द टेंजिबल एसेट्स. इट्स अ टेंजिबल एसेट. अभी टेंजिबल ही होगा, इंटेंजिबल की नहीं. स्टॉक हम उसको नहीं बोलते. ठीक है. व्हिच वी कैन सी, दैट इज ओनली स्टॉक. सॉरी, क्या लिखा? टेंजिबल. इट्स अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय द बिजनेस. इट इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता है ना, कल इतना टाइम लगाया था. फॉर देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस जो उसको बना के बेचना, उसके लिए उसके पास जो है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक. डन. इसके बाद लिखिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक. एक एक लाइन में लिख लीजिए. ओपनिंग स्टॉक, इट इज अ स्टॉक अवेलेबल इन द बिजनेस on the first day of the year, that is 1st April. Opening stock is the stock held by the business on the first day of the year, that is 1st April. Opening stock उसको कहते हैं. ठीक है जी. And the next one is closing stock. What is this closing stock? It is the stock held by the business at the end of the year, that is 31st March. Harman, you want to say something, Betty? Yes. मैम रिपीट कर दो. क्लोजिंग स्टॉक के बाद थोड़ा सा स्लो. Closing stock की बोल रही थी. Closing stock is the stock which is held by the business at the on the last day of the year. On the last day of the year, that is 31st March. ठीक है जी. तो 31st मार्च को जो होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया. उसी को अगले ईयर में ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे. ठीक है. ओके. उसके बाद आप लिखेंगे स्टॉक इज फर्दर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज. दिस एंड दिस एंड दिस. लिख लीजिए. एक एक लाइन में आपको इनकी मीनिंग लिखवा देती हूँ. ठीक है. मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा है. पहले हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, फिर थोड़ा काम होता है, एंड देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स. लिखिए. नंबर 1 रॉ मटेरियल के अंदर लिखिए. रॉ मटेरियल लिख के इसके अंदर लिखिए इट इज द स्टॉक ऑफ अनयूज्ड it is a stock of unused raw material held by the business. ठीक है.
सेकेंड वन लिखिए, वर्क इन प्रोग्रेस, एक एक लाइन में लिखेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर लिखिए, इट इज द स्टॉक of raw material. It is the stock of raw material on which production process is going on. On which production process is going on, but not yet completed. But not yet completed. तो ऐसा रॉ मटेरियल जिसमें काम चल रहा है पर कंप्लीट नहीं हुआ, बट नॉट येट कंप्लीटेड। आपने देखा होगा रोड साइड जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो वहां पे उन्होंने ना सिर्फ लगाया होता है बैनर कि वर्क इन प्रोग्रेस। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम यू विल सी दैट, यू विल कम टू नो व्हाट डज इट मीन्स। इट मीन्स द वर्क इज नॉट येट कंप्लीटेड, सो बी केयरफुल। आई हैव अगेन पोस्टेड दैट attendance link in the chat box, so please fill your attendance, those who have left. Okay, so work in progress is done. Last one is finished goods. देखिए, it is the stock of goods or inventory which is ready to be sold, which is ready to be sold or on which the production process is being completed. इस पे प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है बट अभी बिका नहीं है, इट्स अनसोल्ड। ठीक है जी, on which the production process is being completed but it is not sold yet, बेचा नहीं है। डन, डन है बेटे। ओके, सो वन मोर लाइन आई वांट यू टू राइट हियर। अपनी नोटबुक में एक लाइन बड़े ध्यान से लिख लीजिए। जब भी बेटे हम किसी चीज की टाइम पैसे की बात करते हैं ना, वैल्यू की, फॉर एग्जांपल ये जो रॉ मटेरियल मेरे पास है वो 100 रुपए का मैंने इसको 100 रुपीज का बाय किया था। कब बाय किया था मैंने? जनवरी में। फॉर एग्जांपल मैंने जनवरी तो पिछला ईयर था ना, नहीं करंट ईयर में, मैंने अप्रैल में बाय किया था, अभी मई खत्म होने लगा। अप्रैल में मैंने इसको 100 रुपए में बाय किया था, बट आज की डेट में इसकी वैल्यू है 150 रुपीज। तो नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अकाउंटेंसी व्हाट वी विल डू, एवरी आइटम इज बीइंग रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मींस मैंने जितने का खरीदा मैं उतने का लिखूंगी। अगर मैंने 100 रुपए का लिया ये रॉ मटेरियल तो मैं 100 ही लिखूंगी, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू 150 हो, चाहे 200 हो, मैं कितना लिखूंगी? 100। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, इसलिए स्टार लगा के ये वाली बात लिख लो जो मैं लिखवाने लगी हूँ। और ये जो हम लिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के केस में होगा। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जब हम मेजर करते हैं, जो हमने 450 कैलकुलेट किया, इसके केस में एक एक्सेप्शन है, मैं लिख देती हूँ, स्टॉक is measured at cost price or market value or market price, whichever is less. तो ये हमारा एक स्पेशल रूल है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के लिए कि अगर ये 100 रुपए का स्टॉक मैंने लिया और मार्केट में इसका रेट है 150, तो मैं इसको कितने पे लिखूंगी? 100 पे। अगर मैंने ये 100 रुपए का लिया और मार्केट में इसका रेट है 20 रुपीज, तो मैं इसको किस रेट पे लिखूंगी? मार्केट रेट के ऊपर 20 रुपीज पे। ठीक है जी, दिस इज द एक्सेप्शन। इसका एमसीक्यू आता है 1 नंबर में कि जो स्टॉक है, बेसिकली किस स्टॉक की बात कर रही हूँ मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग स्टॉक। वही आगे ओपनिंग स्टॉक भी बन जाता है। सी स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, याद रखना ये। So closing stock is measured at cost price or market price, whichever is less. जो कम होगा मैं उस पे उसको measure करूंगी। डन है बेटे? क्लियर है सबको? Is it clear बेटे? All of you raise your hands, those who have understood the concept, those who have written.
Okay, only 3, 4. It's not a good number. चलिए, okay, so next जो टर्म हम करने लगे हैं अभी, that is, रब करते हैं इसको बेटे, रब कर दूं, ये लिख लिया ना आपने, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना प्लीज. Now we are going to write about discount. What is the meaning of discount? Have you ever heard this word discount? Have you ever got some discount? Any one of you who want to answer, you can. Any one of you, if you know anything about discount, what is the meaning of discount? क्या होता है बेटे? Okay, Harman, yes, bete, if you can unmute yourself. Ma'am, reduction in price. Very good. It is reduction in price. आपका जो प्राइस है उसमें रिडक्शन हो जाए, that is discount. डिस्काउंट हम सबको पता है, कपड़े लेने जाते हैं वहाँ उन्होंने बोलते हैं कि आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, मॉल में बेस्ट प्राइस में, सब जगह ही अलग अलग टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं, फ्लैट होता है कई बार कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज होती, वो आप 12 उसमें बिजनेस स्टडीज में पढ़ लोगे सारा टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग. तो यहाँ पे मैं सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस से जो हो रहा है मैं उसी के ऊपर स्टिक रहती हूँ. Discount is the reduction in the price of a product, that is discount. We are already clear. Now there are two types of discount. One is trade discount and other is cash discount. ठीक है जी. One is trade discount, other is cash discount. पहले समझा देती हूँ, लिखने का मुझे लगता है टाइम हो जाएगा. Tomorrow I will ask you to write. आज सिर्फ समझ लीजिए इसको. पहले कैश डिस्काउंट समझा देती हूँ. ट्रेड डिस्काउंट थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा शायद आपको, ये वाला पहले समझ लेते हैं. कैश डिस्काउंट क्या होता है बेटे? जब हम कोई भी चीज परचेज करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें सप्लायर कहता है कि इफ यू विल पे मी कैश राइट नाउ यू विल गेट एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट. इफ यू विल टेक द थिंग्स ऑन क्रेडिट यू हैव टू पे फुल अमाउंट. फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन ने 10,000 का सामान लिया, 10,000 rupees का. He was being told if you will buy it on credit you have to pay 100% money. If you will pay it on cash you have to pay only 90% amount. तो अगर तुम अभी पैसे दोगे तो 9,000 में ले जाओ, अगर बाद में दोगे तो 10,000 में ले जाओ. This is called as cash discount. Clearly हमें बता दिया है कि कैश पे लोगे तो इतने पैसे, अदरवाइज इतना. ठीक है. एक और इसकी एग्जांपल देती हूँ. स्कूल में ऐसा होता है जब आप स्कूल फी पे करते हो. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस स्कूल बट इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इट हैपेंस लाइक दिस कि जब भी बच्चा को एडमिशन लेता है उसको बोला जाता है कि इफ यू आर विलिंग टू पे फुल ईयर फी, पूरे साल की 12 महीने की फी इकट्ठी दे दो, देन यू विल गेट सम कैश डिस्काउंट. आपको फॉर एग्जांपल आपकी एग्जांपल के लिए 4,000 रुपए मंथली फी है, तो 12 महीने की फीस आपकी बन गई 48,000. If you will pay all together, you have to pay only 40,000. 8,000 आपको माफ. अगर आप अभी पे करते हो पूरे साल की, you have to pay only 40,000. If you will pay monthly, you have to pay 4,000 and then पूरा 48,000 you have to pay. It's up to you. This is a sure short, clearly visible discount which is called as cash discount. सामने से दिख रहा है ना हमको कि अगर हम right now cash payment करते हैं तो हमें इतना देना पड़ रहा है. तो डिफरेंस बिटवीन द टू 8,000 हमारा क्या बन गया यहाँ पे, क्या बन गया हमारा यहाँ पे कैश डिस्काउंट बन गया. क्लियर है बेटे ये वाला? कैश डिस्काउंट इज क्लियर टू यू? कैश डिस्काउंट इज गिवन ओनली टू द पर्सन हु इज मेकिंग पेमेंट ऑन द स्पॉट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट बेटे जब भी किसी बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन से अच्छे कोर्डियल रिलेशन बनाने हैं, उसको लॉन्ग रन में अपने साथ बिजनेस करवाना है, तो हम उसको कहते हैं कि चल ये चीज तो 20,000 की है बट आई वॉन्ट यू टू कम बैक टू माई शॉप अगेन